Hi students, welcome to Vidyaradhana Academy, Lathur. My name is Ponnaganti Santosh Kumar. Today we are going to discuss PYQ series. The chapter name is Biomolecules beta. अभी तक 2015 से 2020 तक कितना क्वेश्चंस आया दिस चैप्टर से देखेंगे आज. ओके शुरू करेंगे. ओके बेटा. सो फर्स्ट क्वेश्चन, द सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स. This is the carbohydrate topics. Because of biomolecules में we have different types of topics, subtopics, carbohydrates, proteins, nucleic acids, hormones, vitamins. सभी topics बहुत subtopics है, but लेकिन छोटा topic है, but लेकिन more weightage topic है biomolecules. Okay, the first question देखा, sucrose is a disaccharides or monosaccharide? Is a disaccharide. So disaccharides and polysaccharides. Other on hydrolysis will produce monosaccharides, n moles of monosaccharides. देखो sucrose on hydrolysis will give glucose and fructose, आपको मालूम है, but लेकिन अल्फा बीटा टू टाइप्स ऑफ एनोमर्स रहता है. अल्फा बीटा बोले तो एनोमर्स, that is also important. So इधर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज वो कॉमन है. देखो बीटा डी फ्रक्टोज एंड अल्फा डी, बट लेकिन देखो यू नीड टू रिमेंबर करना पड़ता है बेटा. दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज. This is very very important. This is glucose is actually dextrorotatory, fructose is levorotatory minus. That is also important. Sometimes they may ask that type of question also. Which type of? Okay. So glucose, sucrose को hydrolysis करे तो glucose fructose आता है. Glucose is alpha D glucose, fructose is beta D fructose. That is important. So that is the first question. Easy question. This is a 2020 में आया था. Very easy question. देखो देखो. Second question देखो, the difference between amylose and amylopectin. Sir, this is actually क्या sir? Starch. Starch में we have mainly available in the plants में ज़्यादा available रहता है. So starch का, so it is a polymer. Starch is so glucose polymer here. इसमें amylose as well as amylopectin रहता है. Amylose is non-branched, that is you need to remember. Amylopectin is branched वाला. So इसका linkage पूछ रहा है. देखो इधर amylose having 1,4 linkages. इधर very important alpha beta, that is we need to concentrate करना. Alpha beta linkages, 1 linkages देखना पड़ता है. इधर beta linkages दिया, इधर beta linkages दिया, ये नहीं है. So इधर difference कैसा आप differentiate करते amylose and amylopectin. So linkage is actually amylopectin has branched वाला, amylose is non branched वाला, वो ही याद रखना है. बट लेकिन देखो इसमें अब ये NCERT में देखो बेटा, दिस इज NCERT में उठाया देखो amylose, so 1,4 linkage as well as इधर देखो alpha link बेटा, this is important, alpha link. This is amylopectin, this is C6 16 linkages and alpha linkages, that is important. देखो alpha linkages, देखो इधर 16, देखो amylose having 1,4 linkages, amylopectin 1,4 linkages रहता है and 16 linkages, but amylopectin से हम नहीं बोल सकते. देखो amylopectin having 1,4 linkages and 16 alpha linkages, beta linkages नहीं रहता, इधर beta linkages दिया. So that's why either alpha, only difference is be careful बेटा, 1,4 linkage रहता है, 16 linkage रहता है amylopectin को, but लेकिन the alpha linkages रहता है, ये देखना पड़ता है आप. Okay, so that is based on the structure से easily पता चलता. This is amylose, this is amylopectin. देखो branched, this is non-branched, this is amylose. So linkage we should देखो amylopectin को 1,4 linkage रहता है, this is इधर 16 linkage भी रहता है. Okay, that is the thing. Question answer क्या होता है बेटा? amylopectin having 1,4 alpha linkages. देखो 1,4 alpha linkages, देखो 1,4 alpha linkages, 16 alpha linkages. That's why linkages देखना पड़ता. Okay, so that is the second question. Next question number 3. The correct corresponding order of the name of the देखो configuration below. इधर पहले बेटा इधर ऑप्शन देखो L D दिया, एरिथ्रोज एंड ट्रियोज दिया. yes or no? D दिया, L दिया, कैपिटल D कैपिटल L सर. वेरी इंपॉर्टेंट. स्मॉल d इज रोटेशन बेटा, कैपिटल D is configuration, small l are indicated by minus and L both are not equal to beta. This is rotation, optical rotation, capital D capital L configuration, very very important. इधर क्या पूछ रहा है? This is experimentally आता है capital D capital L. Okay, this is relative configuration.
RS कॉन्फ़िगरेशन आंसर रहता है ना, दिस इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, दीज आर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। देखो इधर क्या पूछ रहे हैं सर, व्हाट इज इधर LD ऐसा दिया, देखो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट कायरल सेंटर में more electronegativity elements are right side रहे तो this is a D configuration, this is also ये देखना पड़ता है, this is also D configuration। देखो this is what sir, L configuration, this is a L configuration। so respectively पूछा है, देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर कंपलसरी, सेकंड स्ट्रक्चर DD, देखो LL नहीं है, DD ओके ये ऑप्शन राउंड अप करो, LL ये भी नहीं है, सो इधर DD, बट लेकिन B एंड D में ऑप्शन देखना पड़ता कभी भी सर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दो ऑप्शन इजीली एलिमिनेट कर सके, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए इधर कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। सो डी ओके, बट लेकिन एरिथ्रोथ्रियस बोले तो बेटा सिमिलर ग्रुप्स आर सेम साइड, दो कायरल सेंटर है, सिमिलर ग्रुप्स आर सेम साइड आर विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन आर यू कैन टेक विथ रेस्पेक्ट टू OH ग्रुप, सेम साइड बोले तो दिस इज एरिथ्रोज, एरिथ्रोज। सिमिलर ग्रुप्स आर अपोजिट रहे तो सपोज इधर अपोजिट, ये भी देख सकते हैं अपोजिट रहे तो त्रियो टी, ट्रांस ना, ट्रांस बोले तो अपोजिट नहीं से रिमेंबर करो, सिमिलर ग्रुप्स आर अपोजिट, दो कायरल सेंटर में अपोजिट रहे तो त्रियो। देखो इधर डी एरिथ्रो, इधर क्या है सर, दिस इज आल्सो एरिथ्रो, सिमिलर ग्रुप्स आर सेम साइड, इधर अपोजिट, सो टी। देखो इधर डी एरिथ्रोज, डी त्रियोस, एल एरिथ्रोज, एल त्रियोज ना, सो आंसर क्या होता बेटा डी ना, इधर गलत दिया, देखो डी त्रियोस दिया, बट लेकिन इधर एरिथ्रोस। देखो बेटा एरिथ्रोस बोले तो टू कायरल सेंटर, एडजेसेंट कायरल सेंटर में दो सिमिलर ग्रुप्स आर सेम साइड, एरिथ्रो, ऑपोजिट रहे तो ट्रांस, ट्रांस बोले तो रिमेंबर करने के लिए त्रियो, ओके लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन गिवन बिलो इज नॉन रिड्यूसिंग एजेंट्स। देखो बेटा ऑल मोनोसैकराइड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, all these are monosaccharides ना, monosaccharides क्या होता सर, reducing sugar सर, at generally ग्लूकोज स्ट्रक्चर ऐसा पायरेनो स्ट्रक्चर में, दिस इज C1 कार्बन में फ्री OH ग्रुप रहे तो देखो बेटा दिस इज ऐसा रहता है ना, इधर C1 कार्बन में फ्री OH ग्रुप रहे तो दैट इज रिड्यूसिंग शुगर, बिकॉज इट इज लिंकेज, मोनोसैकराइड्स में ये लिंकेज नहीं रहता, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं रहता, दैट्स व्हाई फ्री OH ग्रुप रहता है C1 कार्बन में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज अ ट्रिक। C1 कार्बन में फ्री OH ग्रुप रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। देखो ग्लूकोज, सुक्रोज, इधर क्या बोला, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बेटा। and also this is disaccharides, lactose also disaccharides, इधर देखो फ्री OH ग्रुप रहता है, आफ्टर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करने के बाद फ्री OH ग्रुप रहता है C1 कार्बन में, इसीलिए ग्लूकोज एनीवे मोनोसैकराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, माल्टोज, लैक्टोज आल्सो रिड्यूसिंग शुगर, सो नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोले तो सुक्रोज, very very important, sucrose is non reducing sugar, okay, simple logic, all monosaccharides are reducing sugar, and very important at C1 carbon free OH group rahe to reducing sugar beta, that is point important, okay, note down। देखो which of the following basic amino acids, sorry amino acids we have essential amino acid, non essential amino acid रहता है ना, so इधर basic amino acid रहता है, acidic amino acid रहता है, so basic amino acid more than 2 NH2 ग्रुप्स रहे तो और 1 NH2 ग्रुप रहे थे, अमीनो एसिड्स में कंपलसरी ये स्ट्रक्चर कॉमन है, दिस इज अमीनो एसिड, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, सो NH2 कॉमन रहता है, COH कॉमन रहता है, एक एक रहता है, सो मोर देन 1 NH2 ग्रुप बेसिक अमीनो एसिड, मोर देन 1 COH ग्रुप एसिडिक अमीनो एसिड। सो इधर देखो सिराइन, टायरोसिन, एलानाइन, लाइसिन में देखो दिस इज अ थियरिटिकल क्वेश्चन सर, मोर देन 1 NH2 ग्रुप रहता है, इधर CH2, इधर NH2 ग्रुप रहता है, ज्यादा NH2 ग्रुप रहता है ये R ग्रुप प्लेस में, so that's why what happens sir, lysine is the basic amino acids। so next question the non essential amino acids, sir इधर we have essential amino acid, non essential amino acid रहता है, sometime एग्जाम में पूछते which of the following essential amino acid, which of the following non essential amino acid, so पहले आप essential amino acids you need to remember करना, 10 essential amino acid रहता है, so easily remember करने के लिए मेरा एक ट्रिक बोलता हूँ, so that is MPTV at hill, each का मिथोनाइन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनाइन, वालिन, अर्जिनाइन,
309 हिस्टिडाइन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, लूसिन। देखो मैं इधर लिखा था, देखो मिथानाइन, फिनाइलएलानाइन, थायरोसिन, वालिन, एर्जिनाइन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडाइन, आइसोल्यूसिन, लूसिन, लाइसिन। देखो दिस इज एमपीटीवी एट हिल, एमपीटीवी एट हिल। देखो इधर लाइसिन, लाइसिन इज एसेंशियल एमिनो। इधर क्या पूछ रहा है, इधर नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। एलानाइन इज देयर इधर, ये इधर एमपीटीवी एट हिल, ये इज देयर, ये बोले तो इधर एर्जिनाइन। देखो वालिन इज देयर ना, देखो लाइसिन इज देयर ना, लाइसिन इज देयर, वालिन इज देयर and leucine is also there na. So all three essential amino acids, these are all essential amino acids, but lekin alanine is non essential amino, so answer should be D. Very easy logic na. So essential amino remember karne ke liye MPTV at hill, simple logic. So dekho this is the structures, okay. Sometime which structures proteins remains intact, intact bole to same ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन प्रोसेस। बेटा डीनेचुरेशन वजह से क्या होता है सर, बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज होता है एज वेल एज। सो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऐसा रहता है ना। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोले तो अगेन ये फोल्ड होता है ना, एट सेकेंड टर्शियरी स्ट्रक्चर अगेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्ड होता है। सो ड्यूरिंग डीनेचुरेशन नेम इट सेल्फ इज देयर। सो क्या होता है, एग बॉयल करे तो डीनेचुरेशन होता है, मिल्क कर्ड बने तो दैट इज आल्सो डीनेचुरेशन। सो इस प्रोसेस में क्या होता है, द सेकेंडरी प्राइमरी स्ट्रक्चर्स विल बी, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमाइन सेम होता है बट लेकिन सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर लूज होता है। तो इधर क्या रिमाइंस सेम, इधर सेम रिमाइंस सेम कौन है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ओनली चेंज नहीं होता है। प्रोटीन नॉर्मली ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्वार्टर टर्शियरी स्ट्रक्चर बोले तो और एक लूप रहता है ऐसा। सो दैट्स वाई क्या होता है, इधर प्राइमरी स्ट्रक्चर आफ्टर डीनेचुरेशन लूज नहीं होता, रिमाइन सेम रहता है। देखो दिस इज एनसीईआरटी पॉइंट बेटा, दिस इज एनसीईआरटी पॉइंट। देखो एनसीईआरटी पॉइंट ओनली। देखो एनसीईआरटी में देखो डीनेचुरेशन पॉइंट ड्यूरिंग ड्यूरेशन सेकेंडरी प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड। देखो सेकेंडरी प्राइमरी स्ट्रक्चर सर डिस्ट्रॉयड हो गया, देखो डिस्ट्रॉयड हो गया। सो रिमाइनिंग, सो बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमाइंस इंटैक्ट। देखो सेम वर्ड इधर फ्रेम किया, दैट्स व्हाई एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट बेटा। इनऑर्गेनिक ऐसा बायोमॉलिक्यूल केमिस्ट्री एवरीडे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट है, वही पॉइंट से क्वेश्चंस फ्रेम करता है। ओके बेटा, सो दिस इज द आंसर। क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमाइनिंग। देखो दिस सेंटेंस से आपको पता चलता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन फॉर्म ज्विटर आयन। ज्विटर आयन एमाइनो एसिड्स फॉर्म करता है ना। सो डाइपोलर आयोनिक स्टेट इज कॉल्ड एज ए ज्विटर आयन। देखो ऑलरेडी एमाइनो एसिड आपको मालूम है, दिस इज NH3+ एंड CO- को हम डाइपोलर आयोनिक स्टेट, ऑपोजिट चार्जेस डाइपोलर बोले तो आयोनिक स्टेट विच आर नॉट माइग्रेट एनी एनोड एंड कैथोड, सो दैट इज कॉल्ड एज ए ज्विटर आयन। ज्विटर आयन एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एमाइनो एसिड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन। देखो सर इधर एलानाइन, एस्टेलानाइड, बेंजोइक एसिड, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज द optically inactive amino acids except glycine, remaining all amino acids are optically active. ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं। ग्लाइसिन इज एक्चुअली, ग्लाइसिन स्ट्रक्चर इज कायरल सेंटर नहीं रहता है इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो आर प्लेस में हाइड्रोजन डाले तो ग्लाइसिन, सो कायरल सेंटर नहीं है, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। दिस इज एमिनो एसिड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म ज्विटर आयन। एमिनो एसिड कैन फॉर्म ज्विटर आयन, सो ग्लाइसिन इज द स्ट्रक्चर है, इट कैन फॉर्म द ज्विटर आयन। ओके बेटा, so next question देखो, in a protein molecule various amino acids are linked together by, sir amino acids are generally linkage कैसे रहता है, पेप्टाइड लिंकेज रहता है ना, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड। जनरली CONH बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं ना, पेप्टाइड लिंकेजेस। सो जनरली पेप्टाइड लिंकेज बाय से प्रोटीन्स बनता है। देखो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल वेरियस एमिनो एसिड्स लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरएनए डीएनए. सो आरएनए स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहे थे. एक बार क्वेश्चन देखो बेटा. जनरली राइबोस, डीऑक्सी राइबोस. सो इसमें आर बोले, सो आरएनए ऐसे रिमेंबर करो, राइबोस रहता है, ऐसे रिमेंबर करो, राइबोस. डीएनए में आल्सो राइबोस रहता है, डीऑक्सी राइबोस रहता है. सो पोजीशन ऑफ दी दिस इज, देखो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया क्लियरली. देखो दिस इज का बीटा डी राइबोस. देखो दिस इज राइबोस स्ट्रक्चर, दिस इज बीटा डी 2. सेकेंड प्लेस में इधर OH डीऑक्सी बोले तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन नहीं. देखो दिस इज राइबोस, बीटा D2 डीऑक्सी राइबोस. सो आंसर देखो, द शुगर कंपाउंड्स RNA राइबोस एंड द शुगर कंपोनेंट DNA इज D2 डीऑक्सी राइबोस. डायरेक्ट टू क्वेश्चन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. देखो सर इधर सेंटेंस एक बार चेक करो. सिंपल फूड्स रिजर्व एग वाइट, ब्लड प्रोटीन्स देखो इन्वॉल्व्स ब्लड क्लॉटिंग, करेक्ट है. डीनेचुरेशन मेक्स प्रोटीन मोर एक्टिव, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट ना. सो इनएक्टिव करता है. देखो दिस इज ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन किया. देखो डीनेचुरेशन वजह से लूजेस द प्रोटीन, लूजेस द biological activity. So that is the reason. So what is the answer here? What is the answer? Proteins more active नहीं है, inactive होता है. So insulin maintain the sugar level in the blood of the human body. This is already आपको मालूम है. So denaturation, this is a गलत आंसर ना, not correct पूछ रहा है ना, not correct. Okay बेटा. So this is the previous year questions of biomolecules beta. Hope you all of you understand. So you know अभी कैसा आता है questions previous biomolecules is which topics are mainly concentrate करना है before exam. Okay, next अगले PYQ lecture में मिलेंगे बेटा. Okay, this is संतोष कुमार, पोन्नागंटी, विद्याराधना अकादमी, लातूर. Thank you.